Welcome to this chat show Face to Face. This is a program that has been initiated and launched by DME Media School. This is the third season of this program. We launched this program in the year 2020, and that was a time when the whole world was affected by the pandemic coronavirus, and that is how the whole idea of the program came, that we have to have something when everybody was sitting at home. So we needed to do something to enhance our engagement between the teachers and the students. So to begin with, to tell you something about Delhi Metropolitan Education, DME has three different schools besides the media school. The other two schools are management school and the law school, and we offer 4 academic programs: BA JMC, BBA, BA LLB, and BBA LLB. And we are an institute which is completely different. We are affiliated to IP University, but then it's unlike any other institution. We do all that possible for the growth is for our students. As far as the online education is concerned, we did a lot of experiment in this education, in the online education. Let us have a look at what all DME did for the sake of education and training during this period. In DME, we believe in engagement and empowerment of students. And since the time this COVID-19 struck in 2020, we intensified this whole process. For the education sector, it was a big challenge. At DME, our small dynamic team decided to take this challenge head-on. We organize different kind of programs, different webinars wherein the distinguished people from the industry and other walks of life, they are invited to interact with the students. We try to keep them engaged in taking out newsletter, writing stories, editing stories, and not only that, they make posters, they make cartoons, they write pieces for the newsletter. Mentoring Cell at DME is a very unique feature in the ecosystem of education. While the subject teachers forge the knowledge domain strongly, it is the mentors who reach out to students in difficult times. During pandemic, when our students faced loss of their loved ones, home isolation, and several other family issues, mentors ensured that students remain cheerful, lively, and stay connected with us. We have ensured that our students are treated with compassion, warmth, and gentle touch. And it has been our endeavor to treat all the academic activities of our students, which includes PSDA, internal assignment, and various other curricular activities accordingly. Research Cell also pays huge emphasis on interdisciplinary nature of research. In order to promote this, the research centers of the Research Cell were also motivated to join with each other and conduct research activities for students, faculties within DME and outside DME. While the strong academics and great industry connect is building great lawyers, media persons, and managers at DME, we at Mentoring Cell are enabling these future leaders to be compassionate, emotionally strong, and resilient for any times to come. We empower the students. All the schools of DME, they have their students' council. In DME Media School, this council is SPARK. They organize the program themselves, they take their own decisions, and they mobilize the students for all the good cause. Art has the power to unite and connect during the times of crisis. Bringing people together, sharing, soothing, and inspiring are powers of art, which have been made empathically obvious by the DME cultural societies during the COVID-19 pandemic. By taking different innovative approaches in organizing various virtual competitions and events in which the students of DME have taken part with great enthusiasm and proved that DMEians are unstoppable. Care with compassion is motto of DME. During Corona period, we were always with our students.
their well-being is primary for us. We take care of our students. We met the expectations of the students, of the parents, and above all of the industry. The placements this year were better than those of the previous years. DME is committed to supporting its students in all possible ways. Welcome back to Face to Face. So proceeding further, let me tell you something more about DME Media School. As we all know, since we are part of DME Media School, that we are in a habit of doing the things differently. We have so many activities, and particularly I must make a mention of the flagship programs of DME Media School, which is the International Media Conference ICANN, of which we have already conducted 4 editions, and the 5th edition is going to take place in July this year. Besides ICANN, we also organize International Film Festival SIFI, of which also we have conducted 3 editions. And even during this Corona period, we were not stopped, and we were doing all these activities, sometimes in the online mode, as the ICANN we were doing in the online mode, and something in the hybrid activities, hybrid mode, like this film festival we were doing in the hybrid mode. And besides ICANN and SIFI, we also conduct BG Varghese lecture series, and taking advantage of this Corona period, we also involved the foreign scholars to be with us virtually and talk to our students on different issues. Like this week only, we are having a BG Varghese lecture series. On Friday, we are in a scholar from UAE is joining. Besides that, we also have the Media Fest, Vritika, also the Ganesh Shankar Vidyarthi Award that we give to excellence in journalism, value-based journalism. So all such activities we do. Not talking about particularly this program Face to Face, as I was already telling you that this is a chat show. Now this is this whole concept, the whole format is such wherein the dean is talking to 3 students, and one student is picked up from each of the batches. Right now we have 3 batches: the 2019 batch, the 2020 batch, and 2021 batch. So from each year there are 1 student joining in 1 episode of the program. So before proceeding further, let us have a look as to who all students are there participating in this episode of Face to Face. Welcome again to Face. And as now we all know as to who are the students participating in this episode of Face to Face. So let me do my responsibility of introducing all the students in this session. To start from the senior most batch, we have Medha Singh with us, who is from 2019 batch and who has been part of this program earlier as well. And then we have Ananya Verma with us, who is from 2020 batch. And then we have from Shubhi from 2021 batch. So as it has been customary in Face to Face, we start talking with the senior most person. So let me start the interaction with Medha Singh. Medha, you have been in DME for the last 3 years, and all kind of ups and downs you have witnessed because Corona affected us all in one way or the other. And as far as the studies are concerned, your batch joined in the
physical mode, and then everything switched over to online mode, and then to the fag end of your 3 years, you were again on the campus in the last semester, and again enjoying that physical mode studies. Though in the last semester, obviously, there is not that much studies to be taken up, less number of papers and all. And also, many of you are already there opting for the placement or have started working somewhere and all. So if I ask you to look back and look at these 3 years that you have passed in DME, what will you tell us, particularly in the light of this pandemic and the effect of the pandemic, and how you handled your studies, and what all experience you can narrate here in this program about these 3 years? First of all, good afternoon, sir. अगर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर की बात करूँ तो हम लोगों ने पूरा ही एक्सपीरियंस किया है, मतलब ऑफलाइन भी एक्सपीरियंस किया, ऑनलाइन भी किया। तो हमारे लिए तो बेटर अपॉर्चुनिटी था बिकॉज हमने ऑनलाइन का भी एक्सपीरियंस किया और ऑफलाइन का भी पढ़ाई एक्सपीरियंस किया है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोरोना ने हमें बिल्कुल बैक स्टैब किया है या कुछ, बिकॉज मतलब मैं एकेडमिक में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती थी बिफोर ग्रेजुएशन। मैं 12th तक बहुत ही मतलब एकेडमिक्स सिंसियर स्टूडेंट थी, तो मैंने एकेडमिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया था अदर दैन कल्चर प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज़ एंड ऑल स्टफ में। तो फिर जब भी फर्स्ट ईयर में मैंने एक्सप्लोर किया कॉलेज को, फिर बहुत सारे पार्टिसिपेट्स लिए, कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, जो भी कॉलेज में ट्राई किया कि मोस्ट ऑफ द जितने भी एक्टिविटीज हो रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करूं, बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा एकेडमिक में थी, तो मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया था कि कल्चर में कैसे होता है। तो वो चीज़ें सबसे पहले मैंने एक्सपीरियंस किया। फिर लॉकडाउन में जब लॉकडाउन हुआ तभी तो सब चीज़ें डिफरेंट हो गई थी, तो वो थोड़े टाइम के लिए डिप्रेसिंग था, बट हम कितने दिन तक डिप्रेसिंग रह सकते हैं, बिकॉज ये हम एडप्ट कर लेते हैं, नेचर से हम एडप्ट कर लेते हैं। तो फिर मैंने स्टार्ट किया काम करना, फिर मैंने बहुत सारे इंटर्नशिप्स किए, जॉब्स भी किए, PR में किया, अभी लास्ट ईयर में मैंने फिल्म में काम किया है एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और कॉलेज का भी एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। कौन सी फिल्म में काम किया तुमने? मैंने फिल्म में काम किया है, वो फीचर फिल्म है, मुंबई के ही टीम थे। मुझे ज्यादा एक्चुअली मैं पढ़ाई करी थी तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं था, बट मेरी दीदी जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है एज एन कॉस्ट्यूम डिजाइनर। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको इंटरेस्ट है डायरेक्शन फील्ड में, क्योंकि उनको पता है कि मुझे डायरेक्शन, प्रोडक्शन, स्टोरी राइटिंग, इन चीजों में इंटरेस्ट है, तो आपको अगर करना है तो आप एक बार ट्राई करिए, देखिए। फिर मैंने उन लोगों से बात किया, अपना जो भी नॉलेज था मुझे, फिर स्क्रिप्ट पढ़ा, उन लोगों ने फिर थोड़ा सा इंटरव्यू वगैरह लिया कि क्या नॉलेज है क्या है। फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैंने अभी असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट पे काम किया है फिल्म में, जो कि कंप्लीट हुआ है अभी पिछले वीक में। तुमने ये कोरोना पीरियड में 3 साल के दौरान कौन सी नई चीजें सीखी मेरा? सर, नई चीजों की बात करूं तो मैंने पहले के उसमें फेस टू फेस में बताया था कि मैंने मंडाला आर्ट भी किया। मैंने कुकिंग तो मुझे पसंद है, तो मैं हमेशा ही करती हूँ। और लाइक मैं नोएडा में अकेले रहती हूँ, तो मेरा सुबह से शाम तक का रूटीन ही होता है कि सुबह उठना, काम करना। हाँ, अगर लॉकडाउन की बात करूँ तो मैंने अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान दिया है, बिकॉज वो टाइम मुझे नहीं मिलता था, बिकॉज मैं बाहर ज़्यादा पढ़ाई में एकेडमिक्स में रहती थी, तो मैं बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खा लेती थी। तो मैंने अभी ट्राई किया कि मैं अपना, मुझे थायराइड भी इसकी वजह से हो गया था, बचपन से ही था, बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा चबी और मोटी थी। तो मैंने अभी लॉकडाउन में स्टार्ट किया कि मैं वर्कआउट करूंगी तो अपने हेल्थ पे ध्यान दूंगी। तो अभी मैंने 10 kg वेट लॉस किया है पूरे लॉकडाउन में। तो ये एक अचीवमेंट था, जो कि मैंने अपने थायराइड को भी कम कर लिया, उसका लेवल भी कम हो गया है। बाकी अगर पढ़ाई की बात करूँ तो मैंने एक्सप्लोर किया है, जैसे कि एडिटिंग में एक्सप्लोर किया, फिर बहुत सारी फिल्में देखी जो मैं देख नहीं पाती थी एकेडमिक्स के चक्कर में, क्योंकि बहुत पढ़ाई होता था 11th-12th तक, तो मैं बिल्कुल फिल्म वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाती थी। तो वो फिल्में बहुत देखी। लेकिन मेरा तुम्हें अभी कोरोना का एक फायदा तो हुआ होगा कि तुम्हें काफी समय अपने घर पे रहने का मौका मिल गया होगा। नो सर,
अगर कोरोना में मैंने बिल्कुल भी टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड नहीं किया, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को लगता है कि मैं अगर घर चली जाऊंगी तो मेरी सिंसियरिटी खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने एकदम से यहीं पे छोड़ दिया था, बोला था कि आप खुद सर्वाइव करो, खुद रहो। बीच में हमें कोविड भी हुआ था, तो मतलब हमने बिल्कुल, मैं और मेरी सिस्टर थी, दोनों ने मैनेज करके उसको फेस आउट किया। बट मम्मी पापा को लगता है कि नहीं, बच्चे अगर बाहर रहेंगे तो वो ज्यादा सिंसियर रहेंगे, उन पे प्रेशर रहेगा कि काम करना है, पढ़ाई करना है, इसलिए घर पे बिल्कुल भी मैंने टाइम स्पेंड नहीं किया। बिल्कुल, कभी शादी वगैरह में ही जाती थी, वैसे कभी ऐसे सच गई नहीं। कहाँ पे घर है तुम्हारा? सर बिहार में है, बिहार में सर पटना के नजदीक ही, आपको पता होगा सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है, उसके ही पास में हाजीपुर है। हाजीपुर भी पता होगा सर, वहाँ का बनाना बहुत फेमस है, तो वहाँ पे मेरा घर है, मेन हाजीपुर। Okay, so moving on to you, Ananya. Good afternoon, sir. Good afternoon. So, as we know that you entered DME at a time when it was all closed, but then you also enjoyed that opening wherein classes started and all, and now we are in the physical mode completely. So your batch was deprived of certain things, but then you got a lot of advantage in terms of so many activities, and you yourself are active. So we know that even if during the Corona period the physical classes were not happening, we were inviting the students for certain things, and the students were also coming to the college meeting the teachers and taking advantage of the library. All that was happening. So how will you narrate your experience of the last 2 years, particularly when the COVID phase was there, and since the time you have been in DME? So what all you will tell us about your experience? सर 2 साल में हमने ऑफलाइन भी फेस किया, और फिर हम अभी ऑनलाइन भी, ऑनलाइन भी फेस किया, अभी हम ऑफलाइन भी फेस कर रहे हैं। तो जब कॉलेज में एडमिशन लिया था तो सोच के लिया था कि अब एक्सपोजर मिलेगा, कॉलेज से स्कूल से बाहर आ गए हैं, वी हैव ग्रोन अप। बट अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, और उसके बाद एकदम से सब कुछ बंद हो गया। एंड बट जिसके वजह से बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, वृत्तिका में, स्थिति में, और भी उसके अलावा भी पोइट्रीज और कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया। और ऑल्दो इंटरेक्शन नहीं हो पाता था इतना, बट मैं पहले से इंट्रोवर्ट हूँ तो मुझे वो चीज़ इतनी अफेक्ट नहीं हुई। बट जब हम ऑनलाइन ऑफलाइन में आए एकदम, और जब सबसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला, तो एक चीज मैंने नोटिस की कि मैं बात करते हुए थोड़ी नर्वस होती हूँ, तो वो चीज मैंने ओवरकम की। और उसके बाद फिर ऑफलाइन क्लासेस में बहुत कुछ सीखने को मिला, और मुझे पता नहीं था 12th तक कि मैं लिख सकती हूँ, या फिर मैं स्टोरीज या पोइट्री कैसा भी कुछ भी लिख सकती हूँ, या मेरे पास फाइन आर्ट्स थी 11th-12th में, बट एज सच मेरा इंटरेस्ट पेंटिंग में नहीं था। इट वाज जस्ट एडिशनल सब्जेक्ट, सो आई वाज स्टडीइंग इट उसी तरीके से। बट जब कोविड हिट हुआ और घर में करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो आई पेंटेड माय वॉल्स, क्योंकि मुझे काफी मैं कभी भी खाली नहीं बैठ सकती। आई हैव टू डू समथिंग, आई ऑलवेज हैव टू डू समथिंग, बिकॉज आई गेट बोर्ड एंड आई कैन नॉट स्टैंड बोर्डम। तो मैंने पेंटिंग उस एरिया में मतलब उस टाइम पे मैंने पेंटिंग सीखी, उस टाइम पे मैंने राइटिंग पर काम किया, और उस टाइम पे मैंने अपनी स्पीकिंग स्किल्स पे भी काम किया। और फिर जब ऑफलाइन क्लासेस हुई तो काफी सारे दोस्त भी बने, जैसे प्रिया मिश्रा काफी अच्छी दोस्त है अभी मेरी। ऑनलाइन में उसे वो लगता था कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे लगता था कि वो बहुत रूड है, तो हमारी ऐसा सच बात नहीं होती थी। और ऑनलाइन में वैसे किसी से इंटरेक्शन नहीं हुआ, बट ऑफलाइन आके पता लगा कि ओके, लोग हैं, अच्छे लोग हैं। और फिर टीचर्स से इंटरेक्शन हुआ जो जो कि बहुत अच्छा था। तो दोनों ही चीजों में बहुत फायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। तो क्या नया, क्या तुमने ऐसी कोई खास चीज जो तुमने सीखी हो इस 2 साल में? सर अपार्ट फ्रॉम आर्ट एंड राइटिंग, मैंने फोटोग्राफी सीखी है, जिसका मेरे से दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं था पहले भी, और मैं फोटोग्राफी या फिर डिजिटल चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थी। बट फिर जब कॉलेज में आने के बाद फिर आई टुक इंटरेस्ट इन फोटोग्राफी, एंड उसके बाद थोड़ी बहुत एडिटिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट आया मेरा। अभी तो आई एम इंटर्निंग इन रेडियो, जो मेरा फर्स्ट ईयर से इंटरेस्ट था, तो अभी तो
ये चीज है। और मुझे नहीं पता था कि मैं थोड़ा अच्छे से बोल सकती हूँ इतना, मुझे सीनियर्स ने बताया। और अदिति कात्याल हमारी सीनियर है, याशिका हमारी सीनियर है, पास आउट हो गए वो। उन्होंने मुझे बताया कि मैं बोल काफी अच्छा लेती हूँ। तो उन्होंने, और यहाँ पे भी मुझे सर ने कहा कि थोड़ा सा इम्प्रूव करो, बहुत अच्छा बोल लेते हो। तो ये चीज मुझे भी पता लगी। चलो, वो ये हमेशा जरूरी है कि हर व्यक्ति को अपने बारे में डिस्कवर करना चाहिए, और ये डिस्कवरी है जो है वो लाइफ लॉन्ग है। बहुत सारी चीजें हमें खुद नहीं पता होती कि हमारे अंदर क्या खूबियां हैं, बट समय के साथ आपके जो तुम्हारे क्लासमेट्स हैं या टीचर्स हैं, उनकी मदद से ऑब्वियसली यू कैन फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स विच इज अ गुड थिंग एंड विच इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ। नाउ मूविंग ऑन टू शुभी। शुभी, तुम्हारे साथ जो कॉलेज वाले तुम्हारे सीनियर्स के एक्सपीरियंस है वो नहीं हुए, तुम्हारा कोरोना पीरियड सारा स्कूल में ही निकल गया। So you would have faced the impact of corona while you were there studying in the 11th and the 12th standard, and I believe that was to the benefit of the student, क्योंकि बहुत सारे लोग तो बिना एग्जाम दिए ही पास हो गए। नो सर, सर फेवरेट सब्जेक्ट वर्स्ट सब्जेक्ट बन गया था कोविड में। क्या हो गया था? फेवरेट सब्जेक्ट जो था वो सबसे गंदा लगने लगा था कोविड खत्म होते होते। हाँ, ऑब्वियसली व्हेनेवर देयर इज अ डिसरप्शन, आपकी एक लाइफ एक पेस पे जा रही है, एक तरीके से हो रही है, तो उसमें एक ब्रेक तो लगी गया, एक डिसरप्शन तो आ ही गया, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट देन व्हेनेवर देयर इज समथिंग बैड इज हैपनिंग, देयर आर सर्टेन गुड थिंग्स हिडन, एज वी ऑल नो, वी ऑल हैव एक्सपीरियंस्ड। So we were compelled to find new ways, new devices, new patterns, and learning new things. We all did that. I also did a lot of such things. My teachers did it in DME. All that happened. But how will you narrate your experience of this online education while you were in schools, and once you joined the college DME? Since that time also, it opened in the physical mode when you took admission. For a little while it was again online, and then again it is in the physical mode, it is offline. So how will you narrate all your experience of the last 2 years? सर स्कूल वाला जो ऑफलाइन था वो अच्छा नहीं था, ऑनलाइन था वो अच्छा नहीं था, उसको ऑफलाइन होना चाहिए था और कॉलेज को ऑनलाइन होना चाहिए था। तो उसके अलावा तुमने क्या नया सीखा, क्या किया, ये तो बताओ। सर फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने कुछ भी नहीं किया, सेकंड सेमेस्टर में मैंने इनिशिएटिव लिया कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूंगी। मैंने अपना फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ भी नहीं किया। पहले मुझे लगा कैसे करूँ, क्या करूँ, किससे करूँ कांटेक्ट, मतलब मैं बहुत नर्वस थी, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। सेकंड सेमेस्टर में मैंने इनिशिएटिव लिया, मैं कुछ ना कुछ करती रहूंगी। तो तुम जिस पीरियड में घर पे रही, कोरोना पीरियड में, तुमने उस समय क्या किया? सर मैं समय पढ़ती थी जो सिलेबस में था, या तो फिर मैं गाने सुनती थी या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती थी। कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? मेरी फैमिली में मम्मी पापा, मैं, मेरी बहन और मेरा भाई, और दादी आती जाती रहती है। तो तुम बड़ी हो, तुम्हारे जो सिबलिंग्स? मेरी बहन बड़ी है। मेरी बहन बड़ी है। तो क्या करती थी घर पे, टाइम पास कैसे करती थी? फार्मेसी। वो हम टाइम पास गाने सुन के या फिर एक दूसरे से लड़ाई करके, कुछ ना कुछ मेरे अंदर है कि मैं मजे लेना है, या मुझे कुछ ना कुछ आदत है कि मैं ऐसे चुप नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ करना है। तो तुम्हें क्या, मतलब दूसरों को परेशान करने में ज्यादा मजा आता है? ऐसा कुछ? परेशान नहीं, मतलब अच्छा लगता है। ऐसा होता है ना कि वो सब क्या तुम्हें हंसाती रहती थी, तो कुछ ना कुछ करके होती है ना, कि मैंने कुछ बोल दिया, सब हंस रहे हैं, सब अच्छा सा होता है ना कि सब खुशी खुशी से रहते हैं, वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब तुम अटेंशन सीकर हो, इसका मतलब? यस सर, कुछ अच्छा गलत नहीं भी करती तब भी मेरे पे ध्यान आ जाता है कि मैंने किया है। गाने किस तरह के सुनती हो? गाने बॉलीवुड जो सूदिंग से होता है ना, वो सुनती हूँ। मतलब मूड पे डिपेंड करता है, जैसे कभी होता है कि बहुत ज्यादा पंजाबी गाने सुनने का मन कर रहा है, कभी होता है कि बहुत सिंपल सोबर गाने सुन लो, कभी होता है भगवान के गाने सुन लेते हैं, ऐसा होता है। तो तुम नेचर से भी क्या सोबर हो कि एग्रेसिव हो? नहीं सर, मैं बहुत सोबर हूँ, लेकिन अगर
होता है ना कि एक बार ईगो पे आ जाती है तो फिर अच्छा, मतलब ये तुम्हारे ईगो है इसका मतलब? ईगोइस्टिक थोड़ी थोड़ी। हाँ, ईगोइस्टिक तो कोई अच्छी आदत नहीं है, अच्छी चीज नहीं है। One नहीं should है, try पर to नहीं get आती, it. यूजुअली नहीं आती, हम्म। यूजुअली नहीं आती, लेकिन फिर आती है तो फिर बहुत ज्यादा आ जाती है। चलो ठीक है। मैं फिर कुछ नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन आज इस प्रोग्राम में तुम अपनी आदत के मुताबिक नहीं बोल रही हो, ऐसा क्या हुआ? क्यों शुभी? मैं बहुत नर्वस हूँ। चलो, यू टेक योर टाइम, अभी तो तुम्हारे बहुत पास नर्वस हूँ, मैं जानती नहीं हूँ ना, अगर मैं कोई बात नहीं शुभी, वी यू टेक योर टाइम, आई विल कम टू यू अगेन. So moving on to you, Medha. Now, since you have almost finished your BJMC, so obviously you might be having a lot of things in your memory about your friends, your classmates, your seniors and juniors, and your teachers, and obviously certain memories as far as your campus life is concerned. So what all you can tell us in this program? So my experience was very nice with teacher, with friends, with you, with everyone. और पूरे 3 साल में ज्यादा एक्सपीरियंस तो किया नहीं, कॉलेज लाइफ को नहीं किया। बाकी अगर टीचर्स की बात करूँ तो सर दे आर वेरी सपोर्टिव, वेरी फॉर मी दे आर वेरी सपोर्टिव। मनमीत मैम, कामिल सर, फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो मोहित सर स्पेशली, अभी वो नहीं है बट उनको अभी भी बहुत मिस करते हैं। और श्रुति मैम, सुकृति मैम, दीपिका मैम जो हमें डिजाइन एंड ग्राफिक्स पढ़ाती थी, सारे ही टीचर बहुत अच्छे हैं। जो भी मिस हो गए सारे ही बहुत अच्छे हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला, बहुत कुछ सीखा भी। और उन्होंने बस मतलब एकदम ऐसा इन्वायरमेंट था कि मुझे अगर कभी मेरी तबीयत खराब हो गई या फिर मैं कभी बिहार चली गई किसी काम से, अगर मेरा एग्जाम का डेट उसमें मैच कर रहा है तो मैं मैम को बोलती थी। मैम मतलब हमेशा ही हेल्प करने के लिए सारे टीचर्स बहुत मतलब। और फ्रेंड्स की अगर बात करूँ तो फ्रेंड्स मेरे काफी बने नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में ही हम थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, और मुझे थोड़ा टाइम लगता है फ्रेंड्स बनाने में, बिकॉज मैं बहुत चूजी हूँ इन चीजों में, फ्रेंड्स बनाने में या फिर किसी भी चीज में बहुत चूजी हूँ। तो मुझे किसी से जल्दी मतलब इंटरेक्शन नहीं होता है, मैं बहुत टाइम लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे लोग होने चाहिए तभी मैं बात करती हूँ। फिर जब मैं बात करती हूँ तो मैं बहुत बात करती हूँ, बट ऐसे सबसे जाके ऐसे बात करना मुझे ज्यादा पसंद नहीं आता है। तुमने कहा कि तुम चूजी हो और तुम्हें अपनी तरह के लोग चाहिए तब तुम बात करती हो, तो वो तुम्हारी कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो तुम दूसरे में भी ढूंढती हो? मुझे झूठ बोलना पहली बात पसंद नहीं है, मुझे फेक चीजें पसंद नहीं है कि मैं कुछ और हूँ और मैं दिखा कुछ और रही हूँ। मतलब दीज डेज पीपल आर मतलब वेरी 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 फेक, वो इंस्टाग्राम पे कुछ और दिखाते हैं, वो रियल लाइफ में कुछ और है, तो मुझे वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जैसी हूँ, मेरा घर जैसा है, मैं जैसे रहती हूँ, मेरी नेचर जैसी है, मैं वैसे ही दिखाना चाहती हूँ। अगर वो लोग मुझे वैसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं तभी मैं उनको फ्रेंड्स बनाती हूँ। अदरवाइज मेरे बहुत ही लिमिटेड फ्रेंड्स होंगे कॉलेज में। ऐसा नहीं है कि वो मुझे फ्रेंड्स बनाना नहीं चाहते थे, बिकॉज मैंने उनसे अप्रोच नहीं किया ज्यादा। सबसे मेरी बात होती है क्योंकि मैं मॉनिटर थी, CR थी क्लास की, तो और स्कूल टाइम में भी मॉनिटर थी, तो मेरे गलती से मॉनिटरिंग, तो मैं बहुत ही इन चीजों में मतलब सबसे बात हुई, सबसे बात अभी भी होती है, काम के लिए होती है। बट फ्रेंड्स अगर बोलूँ तो बस 2-4 ही होंगे, बस 4-5 ही होंगे बस, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो जितने टाइम भी तुम कॉलेज में थी, ऑनलाइन ऑफलाइन whichever mode, can you tell us any such memory which is very distinct, which you always remember and you would always like to cherish all your life? अगर मैं जहाँ भी मैंने पार्टिसिपेट किया है वो चीजें मेरे लिए बहुत मेमोरी जैसा है, बिकॉज मैंने कभी लाइफ में अपने आप को एक्सप्लोर नहीं किया था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतने लोगों के सामने बोल सकती हूँ या फिर बात कर सकती हूँ, या फिर मैंने जैसे अभी आपसे भी अगर बात किया तो वो मेरे अंदर इतनी कॉन्फिडेंस, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ और चीजों में बहुत अच्छी हूँ, बट इंटरैक्ट करने में बहुत ही बुरी हूँ। मुझे इंटरैक्ट करना ज्यादा पसंद नहीं है, इवन कॉल पे हो, चैट में हो, कहीं भी मुझे इंटरैक्ट करना ज्यादा पसंद नहीं है। तो मुझे ये चीज मैंने एक्सप्लोर किया और ये चीज मैंने ओवरकम किया है कि हाँ मैं मतलब काम के लिए बात कर सकती हूँ, पहले काम के लिए भी नहीं करती थी, तो वो चीज है।
बाकी अगर मेमोरीज याद रखने की है तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जब भी, मैं बहुत बंक कभी किया करती नहीं थी, कभी भी स्कूल डेज कॉलेज लाइफ कभी नहीं किया है, बट जब दोस्त बोलते थे, मेरे 4 फ्रेंड्स बन गए थे, अगर उनको पसंद है तो मैं उनके लिए जब बंक करती थी तो वो चीजें मुझे हमेशा याद रहेगी कि मैंने ये भी किया है, बिकॉज ये मेरे नेचर से डिफरेंट है बट मैंने एक्सप्लोर किया है, तो ये चीजें मुझे हमेशा याद रहेगी। उनके साथ घूमना, मॉल चले जाना। तो तुम्हें याद तो रहेगा तुमने बंक किया, लेकिन तुमको लगता है कि बंक करना कोई अच्छी आदत है? सर मैंने बिल्कुल मैं बहुत ही स्मार्ट, इन चीजों में बहुत स्मार्ट हूँ। मैंने तभी बंक किया है जब जिस क्लास में ऐसा लगा हो कि मतलब लास्ट के, मैंने कभी भी स्टार्टिंग के 5 क्लास कभी भी बंक नहीं किए, लास्ट के 2 क्लास बहुत ही एग्जॉस्टिंग होता था। उसमें कभी ऐसा हुआ कि सर ने बोला कि ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा के हम छोड़ देंगे, ठीक है, उसके बाद ही मैंने बंक किया है। मतलब स्टार्टिंग की मिस करने वाले कोई भी क्लास में मैंने बंक नहीं किया, या फिर रिपीट कुछ हो रहा है, स्टूडेंट बहुत कम आए थे, तब अगर चीजें फिर से रिपीट की जा रही है तभी मैंने बंक किया है। तो ऐसी ऐसी कौन सी चीज है डीएमई के बारे में जो तुम्हें डीएमई में सबसे ज्यादा पसंद है? सर डीएमए में मुझे सबसे ज्यादा, मुझे टीचर्स पसंद है, बहुत सबसे ज्यादा। सब, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है, किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस टीचर्स अच्छे होने चाहिए। बिकॉज अगर टीचर अच्छे हैं, वो बहुत ज्यादा नॉलेज तभी हम गेन कर पाएंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, उनसे पता करेंगे कि आगे हमें क्या करना चाहिए, लाइफ में क्या करना चाहिए। तो वो लाइक मेंटोरिंग बहुत ही जरूरी होता है, तो वो चीजें मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। सो गुड। तुम कह रही हो कि तुम्हें इंटरेक्शन नहीं पसंद है, बट देन तुमने जितने भी जवाब दिए बहुत ही पॉइंटेड, बहुत ही फोकस्ड और बहुत प्रिसाइसली जवाब दिए, विच इज रेयर क्वालिटी इन फैक्ट। सो आई Thank you so much. appreciate that quality of yours. Thank Now you, sir. moving on to Ananya. Ananya, if I ask the same question to you, for whatever time you have been in DME, what has been your experience in terms of your relationship with teachers, in terms of your friends, and whatever you enjoy, you would have enjoyed in the college, the campus life? सर कॉलेज के अंदर सचिन सर जब थे और हमारी वो क्लास बीच बीच में उन्होंने फोटोग्राफी के सेशंस लिए थे, तो काफी फन सेशंस थे और बहुत ही इंफॉर्मेटिव भी थे। तो हम बेसिकली मजे भी कर रहे थे और हम सीख भी रहे थे, तो एक तो वो याद रहेगा। फ्रेंड्स के साथ अभी बीच में जब हम अपना एड शूट करने के लिए निकले थे कैंपेन के लिए, तो हमारे साथ कुछ जूनियर्स भी थे जो हमारी हेल्प करवा रहे थे एज इन शूटिंग और एक्टिंग में। तो उस टाइम पे जब हमने सब कुछ पैकअप वगैरह करके हम घर जाने लगे तो एकदम बारिश हो गई थी। वैसे मैं 62 से जाती हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिटी मुझे रोड थोड़ा लंबा पड़ता है, बट क्योंकि बारिश हो रही है तो हम सब प्रिया के साथ वो इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाले स्टेशन पे नाचते गाने जा रहे थे। बहुत ही फन एक्सपीरियंस था, मतलब बहुत मजे कर रहे थे उस टाइम पे हम। और उसके अलावा काफी सारे इंटरेक्शन मेरा टीना मैम और मेधावी मैम और बहुत सारे टीचर्स के साथ मेरा बहुत ही इंटीमेट इंटरेक्शन रहा है, जो कि मेरे लिए नॉर्मल नहीं है क्योंकि मैं बहुत इंटीमेट होकर इंटरेक्ट करना नहीं पसंद करती हूँ सबसे। जैसे कि अभी हमारी सीनियर ने कहा, उन्होंने कहा कि ज्यादा इंटरेक्टिव होके मैं सबसे बात नहीं करती हूँ, बट जब मैं बात करती हूँ तो मैं चुप नहीं होती हूँ। तो वो चीज जो टीचर्स के साथ जो इंटरेक्शन हुआ था अभी पिछले 1-2 सालों में, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, पहली बार जब टीना मैम ने मुझे सीसी के लिए बोला था गाने के लिए और वो परफॉर्मेंस एक्चुअली अच्छा हुआ था थोड़ा, तो वो मेरे लिए काफी मेमोरेबल रहेगा क्योंकि वो एक ऐसी चीज थी जिसमें मैं थोड़ी इनसिक्योर हो रही थी, बट उन्होंने मुझे थोड़ा पुश किया तो मैंने करा भी और वो अच्छा भी लगा सबको। तो वो चीज मुझे याद रहेगी। और सुमंत्रा सर की क्लासेस तो कैन नेवर बी अनफॉरगेटेबल। सारी ही क्लासेस में बहुत मजा आता है और बाकी क्लासेस में भी बहुत मजा आता है। और अभी जब हीना मैम ऑनलाइन सेशन पे पढ़ा रही थी तो उनकी क्लासेस में भी बहुत कुछ सीखने को मिला, तो वो क्लासेस भी नहीं भूल सकती। सुमंत्रा सर का तुमने खास तौर से जिक्र किया। सुमंत्रा सर की क्लास में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? सर ना कभी कभी ऐसे मूवीज या फिर शॉर्ट वीडियोस दिखाते हैं, फिर सर उस पे हमारी एनालिसिस या फिर हमारी हमारी क्या सोच है उस वीडियो पर, वो पूछते हैं, फिर उसके हिसाब से सर बताते हैं कि क्या चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए शूट करने के दौरान। क्योंकि फर्स्ट ईयर में कैमरा हाथ में पकड़ा भी नहीं था हमने, और जब हम एकदम ऑफलाइन में आए तो सुमंत्रा सर की क्लासेस में, क्योंकि सचिन सर उस टाइम पे हमें नहीं पढ़ा रहे थे, वो फर्स्ट ईयर में हम दोनों ने पढ़ाया था और सेकंड से ईयर में हमें सुमंत्रा सर ने पढ़ाया है।
तो जब एकदम वो कैमरा वो हाथ में आया तो वो एक्सपीरियंस ही अलग था, क्योंकि कभी लिया ही नहीं था कैमरा हाथ में। तो काफी इंफॉर्मेटिव सेशन थे, और सर की क्लास में हम हमेशा हंसते खेलते रहते हैं, तो वो क्लासेस काफी इंटरेस्टिंग लगती है। तो जिस तरह से तुमने टीचर्स के बारे में बताया, तुम अपने किसी फ्रेंड का जिक्र करना चाहोगी या उसके बारे में बताना चाहोगी? सर फ्रेंड्स तो मेरे बहुत ज्यादा नहीं है क्लास में। रीजन क्योंकि मैं सबसे इंटरेक्ट नहीं करती हूँ, मतलब मैं कर लेती हूँ इंटरेक्ट, बट वो एकदम इंटीमेट वाली चीज नहीं होती। तो एक तो प्रिया मिश्रा जो है, उससे मेरी काफी अच्छी बात है। हम लोग साथ में इंटर्नशिप कर रहे हैं अभी। मैं, विनायक और प्रिया साथ में इंटर्नशिप कर रहे हैं अभी। दोनों बहुत अच्छे, बट आज प्रिया नहीं आई। अ, तो प्रिया की एक खास बात ये है कि वो ना एक पर्टिकुलर टोन में बात करती है, और वो नॉर्मल बात भी उसी टोन में करती है, तो लोगों को लगता है बहुत गुस्से में बोल रही है। तो ना वो कभी कभी उसकी बात इतनी फनी लगती है ना, कि मैं और विनायक कुछ नहीं करते, उसको सुन के बस हंसते रहते हैं, अपना अलग उसकी खींचातानी करते रहते थोड़ी। तो एक तो प्रिया, एक सुच्ची, क्योंकि ये सुच्ची ऐसी दोस्त है जो मुझे फर्स्ट ईयर में बिल्कुल प्रिया की तरह लगी थी, कि थोड़ी बॉसी होगी या थोड़ी रूड होगी। बट जब हम अभी ऑफलाइन में मिले, तो हम जब घर जाने से पहले आधा घंटा हम सूफिया या फिर सुच्ची के पीजी में तो हम रुकते ही हैं, क्योंकि कभी कभी वो नहीं आ पाती, या फिर कभी कभी वो होती है तो उसके साथ चले जाते हैं, खुद ही लेके चले जाती है। कभी हम ऐसे ही फन करने के लिए अभी बीच में मैं, सूफिया और सुची ऐसे ही कि बिना किसी प्लान के अक्षरधाम निकल गए थे, और हमने वहां पे आराम से 3-4 घंटे मतलब अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने। तो मतलब तुम्हारा पढ़ने में मन कम लगता है और नहीं फन नहीं नहीं लविंग नहीं नहीं चीजों में सर, ज्यादा है? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, दोनों में है, दोनों में है। क्लासेस क्लासेस तुम कितनी रेगुलर अटेंड करती हो? सर मैं जब ऑनलाइन था हमारा, तो मैं सारी क्लासेस टाइम से ही लेती थी। अभी जब ऑफलाइन हुआ था, तो बीच बीच में कभी कभी मेरी पहली प्रमोद सर की क्लास हमेशा ऐसा मिस हो जाती थी, क्योंकि मैं पहुंच ही नहीं पाती थी। कभी मैं 9:30 बजे कॉलेज पहुंच ही नहीं पाती थी। कभी मेट्रो की वजह से डिले हो जाता था, क्योंकि कभी कभी होता है कि, कभी कभी नहीं, अब तो बहुत ही रेगुलर हो गया है कि मेट्रो रूट में बहुत रुक रुक के आती है। या फिर मैं मेट्रो स्टेशन पहुंचते पहुंचते बहुत ट्रैफिक जाम है किसी इंसिडेंट की वजह से, मैं लेट हो गई, तो मैं 10 10 10 तक ही पहुंचती थी। लेकिन प्रमोद सर को कॉल करके पहले पूछ लेती थी कि सर मैं अभी आई हूँ, मैं क्लास में आ जाऊँ, तो सर कभी ऐसे मना नहीं करते थे। सर बहुत सपोर्टिव है। तो मेरी हमेशा उनकी शुरू की क्लास रह जाती थी। रीजन भी कि घर बहुत दूर पड़ता है मेरा। घर कहाँ रहती हो? काफी तो सर मैं गीता कॉलोनी रहती हूँ, निर्माण विहार के पास। वैसे वो निर्माण विहार से थोड़ा 25 मिनट 30 मिनट दूर है। और वहाँ पे काफी ट्रैफिक रहता है, काफी सुबह के टाइम पे भी वहाँ पे बहुत ट्रैफिक रहता है। तो वहां से आते आते में टाइम लग जाता है, और कभी कभी मेट्रो की वजह से डिले हो जाता है। डीएमई के बारे में कौन सी एक ऐसी चीज है जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है? सर सिर्फ सिर्फ एक नहीं है वैसे तो। यहाँ के टीचर्स, जैसे कि मैंने बोला, बहुत सपोर्टिव और बहुत स्वीट टीचर्स हैं। और कुछ टीचर्स ऐसे भी, जैसे मोहित सर स्पेसिफिकली बहुत स्वीट। उनकी क्लासेस में बहुत मजा आता है। सचिन सर भी अभी तक याद आते हैं, और मुदिता मैम तो बहुत, उनसे काफी इंटीमेसी थी मेरी। तो टीचर्स बहुत अच्छे हैं। दूसरा कि जो यहाँ पे हमारी जो स्टूडियो है, स्टूडियो में हमारा टाइम ज्यादा नहीं निकला, लेकिन जो निकला वो काफी रिमेम्बरेबल, काफी अच्छा टाइम था। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, और क्लासेस काफी इंफॉर्मेटिव और बहुत इंटरेक्टिव क्लासेस होती है, जिसके लिए मुझे अपनी क्लास के बच्चे से ताने भी मिलते हैं कि सारे आंसर तू ही देती है, सारे क्वेश्चन तू मत पूछा कर, क्लास के एंड में क्वेश्चन मत पूछा कर, जल्दी खत्म होने दिया कर। तो ये सब चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है। गुड। सो अच्छी बात है कि तुम्हारे साथ इतनी सारी चीजें मेमोरी में हैं, इतने सारा तुम्हारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं which are really I mean, as you are presenting this all, it appears that you have been cherishing this all, which is really a good thing, because any student who is studying at this level, this you are doing for only for the, I mean, this is the only time that you are doing it. Obviously आगे की life होगी when you will further study, will take up job, the kind of enjoyment that you can have, the kind of learning that you can have in the college level, this time will never come again. So moving on to you, Shubhi.
So, Shubhi, what will you tell us if I ask whatever time you have been there, though, since you are from the junior most batch, so not more than 6 or 7 months time at the most you have spent in DME. But then during this period, you would have made a lot of friends. You would have experienced different kind of teaching. You would have been interacting with different teachers. So what will you tell us about your friends, your teachers, and your experience on DME campus? सर जैसा अभी अनन्या दी और मीरा दी ने बोला कि वो इंट्रोवर्ट्स हैं और वो कम लोगों से बात करते हैं, उनकी बहुत कम लोगों से बनती है। तो सर सेम तो एक्सट्रोवर्ट के लिए होता है, वो इंटरेक्ट सबसे कर लेते हैं, दोस्ती तो कम लोगों से ही होती है, वाइब्स तो कम लोगों से मैच करती है ना। तो इसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की बात ही नहीं आती, मुझे इस चीज़ पे बोलना था। और फिर मेरी भी सर मैंने बात सबसे की, बट दोस्ती तो कुछ गिने चुने 3 लोगों से, एक ही से हुई थी पहले तो फर्स्ट डे, अभी तक वो है ही। फिर फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होने वाला था, फिर एक और 2-3 लोगों से और बात हुई, अब उन्हीं से हो रही है बस। इनकी की 4 या 5 लोग हैं जिनसे किस से बात हुई ये भी तो बताओ। मेरी सबसे हुई है, मेरी सबसे बात हुई है। हाँ, मतलब बात सबसे हो जाती है, इंटरेक्शन सबसे हो जाता है, लेकिन मेरे दोस्त सब नहीं है। अच्छा, जो दोस्त हैं उनके बारे में बताओ। मेरी विशाखा, सुप्रिया, यश, प्रणव और एक आदिति, ये दोस्त है। तो सबसे अच्छा दोस्त कौन लगता है तुम्हें? सर 2 हैं, 2 सभी है सर। सबसे पहले मेरे को सुप्रिया मिली थी फर्स्ट डे, सेम जगह में बैठे थे। और सर जिनके साथ मैं कॉलेज आई थी, जो मेरे पहले से ही दोस्त थे कॉलेज में, उनसे मेरी बिल्कुल बात नहीं होती, मेरी क्लास में मेरी बात नहीं होती उनसे। और what about your teachers, your interaction with teachers? सर जो फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब सबके साथ ऑब्वियस हुआ है, बट मेरे साथ ये हुआ है कि जो ऑनलाइन में पढ़ाई हुई ना, वो मेरे दिमाग में बहुत अच्छी से गई, और जो ऑफलाइन में हुई उसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ऑनलाइन में मेरे को बहुत अच्छे से समझ क्यों? ऑनलाइन में क्या अच्छा था? सर मैं अपने कंफर्ट जोन में पढ़ाई कर रही थी, कोई घर जाना आना, ट्रैवलिंग था ही नहीं मेरे लिए। तो मैं अपना टाइम था पढ़ाई पे लग रहा था। उसके बाद मैं थोड़ा ऐसे मतलब क्लास खत्म हुई, थोड़ा घर में ऐसे टहल कर वापस आ गई, वापस बैठ के पढ़ने लगी, और फिर वही रखा हुआ है, एक जगह बैठ गए, फिर उधर ही पढ़ते रहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना। तो इसके बाद प्लस ऑनलाइन क्लासेस तो घर वाले भी डिस्टर्ब नहीं करते कि क्लास चल रही है तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो मतलब इसका ये हुआ कि जब से फिजिकल क्लासेस चल रही हैं तुम्हारी तो मोस्टली फिजिकल क्लासेस ही हुई है, तो फिजिकल क्लासेस में तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होते हैं। सर ये बात नहीं है सर, घर जाना आना स्ट्रेस होता है सर, इतना दूर। मुझे लगा ऑनलाइन होगा तो कोई मतलब दूर का कॉलेज, तो मैंने इसलिए ले लिया, और प्लस आईपी का था इसलिए मैंने कॉलेज लिया, वरना तो पापा मना ही कर रहे थे कॉलेज के लिए। मेरे में काफी रिस्ट्रिक्शन थी कि इस वाले कॉलेज में इतना दूर है मत जाओ, ये वैसे ऐसे स्टूडेंट्स कम ही मिले हैं मुझे इस प्रोग्राम में भी जो ऑनलाइन एजुकेशन की तारीफ कर रहे हो, बिकॉज ज्यादातर स्टूडेंट्स यही कहते हैं दे वर ऑलवेज ईगर टू कम टू द कैंपस एंड ऑल, बट तुम हो कि ऑनलाइन एजुकेशन तुम्हें अच्छी लगी। चलो, क्योंकि ऑनलाइन में मुझे सब याद रहे, मैं मतलब एग्जाम टाइम में मेरे पास कोई प्रेशर नहीं था, मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। तो तुम जो भी, चलो जितने दिन भी तुम कैंपस में हो, ऑनलाइन के अलावा, ऑनलाइन का पीरियड को माइनस कर दो, तो तुम्हें कैंपस में सबसे अच्छा क्या लगता है? जब तुम आती हो कॉलेज में तो तुम्हें क्या लगता है कि क्लासेस अटेंड कर लें, कि फ्रेंड्स से बात कर लें, कि बाहर कहीं बैठ जाएं, क्या सबसे अच्छा लगता है? क्लासेस अटेंड करनी है, फिर थोड़े बहुत मजे करनी है, फिर दोबारा क्लासेस अटेंड करनी है। मजे कैसे करती हो? मजे वो तो अपना अपना तरीका ढूंढ लेते हैं, जैसे क्या तरीके हैं? ये तो दोस्तों के बीच में होते हैं ना। दोस्तों के बीच में है तो उसमें ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं बताई जा सकती? जैसे कि आज होता है ना कि कोई है, आज उससे ऐसी बात करते हैं, थोड़ा मजे लेते हैं, बस ऐसे ही, बस ऐसे। Okay, so moving on to the next segment, now Medha again.
Medha, if I ask you, though few things you have told us already, ask you about your talent, your creative instinct. So what all you have been doing and what all you are doing these days, and what kind of interest that you have that you would like to pursue in future as well. So first of all, I developed photography skill and of course storytelling, and like whatever I do, I think about the story behind this, behind that. कुछ भी मैं कर रही हूँ तो मैं उसके पीछे स्टोरी देखती हूँ कि अगर मैंने ये अगर मैं कुछ भी पिक्चर क्लिक करती हूँ तो उसके पीछे का स्टोरी देखती हूँ कि अगर उसमें कुछ स्टोरी नहीं है तो वो पिक्चर ही नहीं है, बेकार है। तो वो चीजें मैंने एक डेवलप की है। पहले क्या होता था कि मुझे पता ही नहीं था कि, मुझे बस इतना पता था कि अरे खुद के पिक्चर्स होते, थोड़े बहुत एनवायरनमेंट के पिक्चर होते, उसमें कुछ सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं पता होता था। बट अभी मैंने ये सारी स्किल डेवलप की है, फोटोग्राफी, स्टोरी टेलिंग, ऑफ कोर्स स्टोरी राइटिंग एंड एडवर्टाइजिंग का। मैंने पहले ऐड देख के समझ नहीं आता था कि ऐड में क्या है, अभी ऐड देखते हैं तो सिर्फ अपने पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, उसको ऐड की पर्सपेक्टिव से अब देखते ही नहीं। अब अगर मूवी देखते हैं तो उसको पूरी फिल्म को सिनेमाटोग्राफी की तरह से देखते हैं, उसमें कैसे 3 एक्ट सिस्टम में कैसे उसको ब्रेक किया गया है उस तरीके से देखते हैं। तो मैं इन चीजों पे वर्क कर रही हूँ। और अगर फ्यूचर की बात करूँ तो सर मुझे डायरेक्शन में ही जाना है, फिल्म मेकिंग में, और एड एंड PR में भी मुझे इंटरेस्ट है। तो मैंने अपने आप को बिल्कुल स्टिफ नहीं किया है कि मुझे यही चीज एकदम पर्टिकुलरली करना है। मे बी मैंने अगर स्टिफ कर लिया तो मेरे लिए कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी हो और मैंने उसको ग्रैब ना किया, तो मैंने स्टिफ नहीं किया है। मैंने अभी डायरेक्शन में भी किया, मैंने एड एंड PR में भी काम किया है, तो वो एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत ही अच्छा था। नो डाउट PR का थोड़ा सा बुरा था, बट फिल्म मेकिंग तो काम मेरा बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत ही अमेजिंग वहाँ का कल्चर होता है। तो वो चीजें मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट कर रही है आगे फिल्म मेकिंग में करियर के लिए। तो मैं मास्टर्स करना चाहती हूँ, तो उसके लिए सर मैंने अप्लाई किया है अभी, IP के कॉलेज में तो किया ही है, और बाकी सिम्बायोसिस में भी ट्राई कर रही हूँ, और भी बहुत IIMC के लिए भी मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट काफी पहले से किया था, तो उसके लिए भी मैं पेपर दूंगी। तुम्हारा ये जो फिल्म मेकिंग वाला इंटरेस्ट है, ये न्यूली फाउंड लव है कि पहले से था ये? सर फिल्म मेकिंग का इंटरेस्ट मुझे अगर बोलूँ तो बचपन से ही मैं बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा इमेजिनरी, मतलब मैं बहुत इमेजिन करती हूँ, बहुत इमेजिनरी स्किल है मेरे अंदर। तो कुछ भी चीज, अगर कुछ भी चीज हो उसमें मैं बहुत कुछ इमेजिन कर लेती हूँ। तो ये चीज मुझे काफी पहले से ही था, और मैं घर में मतलब बहुत ही ज्यादा ड्रामेबाज, कुछ भी कहानी स्टोरी को बहुत ही अलग तरीके से प्रिटेंड करके बताना, ये चीजें मेरे बचपन से ही था। बट मुझे पता नहीं था, बिकॉज बिहार में जो भी जो है, ऑनेस्टली वो बात है, पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि बच्चे को भी पता होता है कि मेडिकल इंजीनियरिंग यही चीजें होती है, इसके अलावा और कुछ स्कोप ज्यादा अब डेवलप हो गई है, बट पहले नहीं थी। तो सर वही मैंने फिर अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे फिल्म में मतलब BJMC करना है। तो फिर उनको मतलब ज्यादा बताया, डीपली बताया कि क्या करूंगी आगे, फ्यूचर स्कोप क्या है। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर ऐसे ही मतलब फिल्म मेकिंग में मुझे मतलब पता नहीं था कि फिल्म मेकिंग क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, बट हाँ इंटरेस्ट पहले से ही था, बचपन से ही था कि स्टोरी टेलिंग कैसे करते हैं, या फिर स्टोरी को कैसे बना के प्रेजेंट करना है, उसको ड्रामा बना देना है। तो वो चीजें मैं बचपन में भी करती थी, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ भी करती थी हमेशा। तो वो बचपन से। तो इसका मतलब ये हुआ तुम इंट्रोवर्ट भले ही थी, लेकिन जो स्टोरी टेलिंग का इंस्टिंक्ट है वो तुम्हारे पास पहले से ही था। सर मैं इंट्रोवर्ट तो नहीं कहूंगी खुद को, बिकॉज मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ। अगर इंट्रोवर्ट होती तो मतलब मैं इंट्रो एक्सट्रोवर्ट हूँ सर। मैं चूज करती हूँ कि मुझे किस तरह के लोगों से बात करना है। मैं उन्हीं मतलब एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मुझे पसंद नहीं है कि ज्यादा मतलब मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ लोगों में टाइम। मतलब पता नहीं क्यों मैं ऐसी हूँ। मेरे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि तुम बहुत अलग हो, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करती हूँ लोगों से। जो मुझे काम के लोग लगते हैं, जिनसे लगता है कि बात करके मुझे मतलब कुछ ऐसा खुद का फायदा है, तो मैं उन्हीं लोगों से बात करती हूँ। मतलब ये चीज है, मैं इंट्रोवर्ट तो नहीं हूँ बिल्कुल भी, इंट्रो एक्सट्रोवर्ट हूँ। चलो ठीक है। Now moving on to you, Ananya. Ananya, you have so many talents which you told us already and which we have seen in your AV as well. But if I put up this question to you, what will you tell us that what is the creativity that you have, and what are all those creative aspects, those creative arts in which you are interested?
सो पहले तो मैं सिचुएशंस जैसे फिक्शनल सिचुएशंस भी बहुत अच्छे से इमेजिन करके लिख लेती हूँ एंड मैं इस तरह से बता देती हूँ कि सामने वाले को विश्वास हो जाता है कि वो सच ही है। ठीक। तो ये वाला जो मेरे पास टैलेंट है ये बचपन से ही है। मैं बचपन से कहानियां सुनाने में बनाने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। मेरी मम्मी ने मेरा नाम स्टोरी टेलर रख दिया था घर में। और क्या नाम रखा था, क्या नाम रख दिया था? स्टोरी टेलर रख दिया था मेरा नाम सर चलो स्कूल में। और स्टोरी टेलर तो चलो पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कोई ऐसी खराब चीज नहीं है। मेधा भी स्टोरी टेलर है, तुम भी स्टोरी टेलर हो। स्टोरी टेलिंग इज ए ग्रेट आर्ट। सर वो होता है ना एक सिचुएशन के हिसाब से बात करनी आनी चाहिए। एक तो मेरी मम्मी बोलती है कि तुम्हारे पास बात करने का बहुत अच्छा तरीका है, तो वो बहुत ट्राई करती है कि मैं एंकरिंग में चली जाऊं, बट मेरा इंटरेस्ट अभी उस तरफ नहीं है। अब इनको पता भी नहीं है कि मेरा इंटरेस्ट कैमरा की तरफ है, बिकॉज कैमरा की तरफ इसलिए क्योंकि मुझे मोमेंट्स को कैप्चर करना बहुत पसंद है। दूसरा मुझे ट्रैवल करना बहुत ही पसंद है, क्योंकि मैं एक जगह पे नहीं रह सकती हूँ। मैं एक जगह पे कभी रह ही नहीं सकती हूँ। कॉलेज में भी अगर आपने देखा होगा तो मैं कहीं ना कहीं रहती हूँ। कभी गाने में रहती हूँ, कभी डांस में रहती हूँ। डांस का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था फेयरवेल में। इससे पहले मैंने डांस नहीं किया है। कभी एक्टिंग में रहती हूँ, कभी राइटिंग में रहती हूँ, बट ऐसा है कि मुझे कहीं ना कहीं जाना है, ऐसा स्टेबल नहीं है मेरा। दूसरा पोइट्री का इंटरेस्ट तो मैंने अभी डेवलप किया। तीसरा भी अभी कोविड के थ्रू ही लाइफ को देखने का मेरा पर्सपेक्टिव एकदम बदला था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई मेरे साथ कि जब सब कुछ एकदम बंद हो गया था और जो एक्सपेक्टेशंस थी वो हो नहीं पा रही थी। कॉलेज लाइफ की एक्सपेक्टेशंस अलग थी, क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर को देखा कॉलेज जाते हुए। वही सुबह निकल के वो रात को 8-9 बजे आते थे, कभी फ्रेंड्स के साथ, कभी कहीं जा रहे हैं। तो मैंने भी वही एक्सपेक्ट किया था कि मैं भी कॉलेज लाइफ में अपने फ्रेंड्स के साथ रहूंगी, बट एकदम से सब कुछ बंद हो गया और कहीं से एक्सपोजर नहीं मिल रहा था। और क्योंकि मैं एक कभी कभी बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट हो जाती हूँ, तो मैं शेयर भी नहीं कर पाती हूँ कभी कभी। तो उसी टाइम पे मेरे घर के बाहर एकदम एक चिड़िया ने घोंसला बना के अंडे दिए थे उसमें, जो कि बहुत नेचुरल नहीं है क्योंकि चिड़िया अक्सर पेड़ ढूंढती है। और उसने एकदम क्रिसमस ट्री में अपना घोंसला बना के उसमें बच्चे दिए थे। तो उनके बर्थ से लेके जब तक वो उड़े नहीं थे वो सब कुछ देखा मैंने। और उस चिड़िया ने कैसे मेहनत करी, तो एकदम लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव एकदम पॉजिटिव हो गया था। तो हर चीज में मैं कुछ ना कुछ नेचर रिलेटेड या फिर अगर अ, कुछ एनवायरमेंटल में कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करती हूँ, जो अभी डेवलप हुआ। फोटोग्राफी का भी डेवलप हुआ, वीडियोग्राफी का भी अभी कोविड के थ्रू ही डेवलप हुआ था। पेंटिंग का भी शौक मेरा कोविड के थ्रू डेवलप हुआ। और इसके अलावा कुकिंग का भी मेरा कोविड के थ्रू ही डेवलप हुआ। और रेडियो सोसाइटी में बाद में पता लगा था कि मैं अपनी आवाज में इमोशंस की बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर लेती हूँ। वो भी मुझे भी पता लगा। तो ये सब चीजें मुझे भी पता लगी। तो तुम्हें काफी सारी चीजें तो पता लग गई, अब बचा क्या है आगे, जो आगे तुम्हें पता लगेगा फिर? सर अभी एडिटिंग एज इन वीडियो एडिटिंग और साउंड वॉइस एडिटिंग जो मुझे नहीं आती है। वॉइस एडिटिंग मैं यहाँ पे सीख रही हूँ। मेरे सीनियर्स थैंकफुली बहुत अच्छे सीनियर्स हैं, वो सब सिखा देते हैं। तो अभी वो सीखना है। तो वीडियो एडिटिंग सीखनी कौन से अच्छे सीनियर्स हैं तुम्हारे जो तुम्हें सिखा रहे हैं? है। तो सारे अच्छे हैं। सपना मैम है इधर, अभी आरजे अभी है इधर। और हम्म हमारे जो बॉस है अभी अवनीश सर हैं जो, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट हैं सब। कल ही हमारी जब लाइट चली गई थी स्टूडियो की, तो हम लोग इधर डिस्कशन रूम में बैठ के मैं और विनायक गाने ही सुना रहे थे उनको। तो वैसे एंटरटेन करते रहते हैं। हम्म और भास्कर सर, अनमोल सर अभी गए हैं। हम्म। बाकी सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, वो कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, कुछ ना कुछ। तुम्हारा कौन सा, इतनी सारी चीजों में तुम्हारा इंटरेस्ट है, अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो कौन सा ऐसी चीज है जो तुम इस सेशन में, इस प्रोग्राम में हमारे सामने दिखा सकती हो, प्रेजेंट कर सकती हो? सर मैं पोइट्री भी आपको सुना सकती हूँ, बट वो हाँ इसमें लिखी होगी आई थिंक, बट वो ढूंढनी पड़ेगी। हम्म पोइट्री मैं आपको सुना सकती हूँ और मैं गा भी सकती हूँ। ठीक तो है, तो मैं तुम्हें जो ढूंढ विच एवर यू आर कंफर्टेबल विद, यू कैन डू दैट। इफ यू वांट टू सिंग, सिंग, और नरेट द, रिसाइट द पोएट्री इफ यू कैन। द पोइट्री। एक सेकेंड सर, मुझे ढूंढनी पड़ेगी पोइट्री, क्योंकि काफी पीछे है, या फिर शायद फोन में है। मैं फोन से अगर आपको देख के बता दूं तो, ठीक बट है, इसके तो लिए यू कैन कैमरा ऑफ करना यू कैन पड़ेगा। इवन सिंग एज वेल इफ यू कैन सिंग स्पॉन्टेनियसली। अह, हम्म, तुझे क्या गम तेरा रिश्ता गगन की बांसुरी से है।
पवन की गुफ्तगू से है, सूरज की रोशनी से है, खुशबू में बहलाओ ना, गली गली भटकाओ ना, आंखों में आंखें डाल के कह दो, ख्वाबों में टहलाओ ना, तरफ शॉट में बतलाओ ना, हर जरा पॉइंट पे आओ ना, रे 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 हाँ, हे 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 वो, नो, तुम तो अच्छी खासी सिंगर हो, तुम्हें और प्रैक्टिस करनी चाहिए, रियाज करनी चाहिए, सो दैट कि सिंगिंग में भी तुम अच्छा कर सकती हो आगे, इसका मतलब ये हुआ ना। सो यू आर ए मल्टी टैलेंटेड पर्सन, सो आई एम हैप्पी दैट कि इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हमारे पास हैं DME मीडिया स्कूल में। मूविंग ऑन टू शुभी अगेन। Shubhi, what will you tell us about your creative instinct? Like as you have seen your seniors telling us a lot of things, whether it's singing or dancing or music or writing or poetry, what all you do, I mean, where exactly your interests lie and what all you can tell us in this program? सर मैं बोल रही हूँ डिबेटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, लेकिन मेरे में अपना कॉन्फिडेंस अभी डेवलप नहीं हो रहा, बट मैं चाहती हूँ बहुत कुछ करना, बट सर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मैं पीछे रह जाती हूँ। नहीं, कॉन्फिडेंस तो तुम्हारा अच्छा है, मैंने क्लास में देखा है, क्लास में तुम्हारा कॉन्फिडेंस रहता है, स्क्रीन पे कॉन्फिडेंस कम हो गया। नहीं सर, मुझे ना बहुत ज्यादा लोग ऐसे घूरने लग जाते हैं ना, मेरे साथ इंटरेक्शन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे जब ऐसे देखने लग जाते हैं ना, तो वो चीज में फेस नहीं, सब लोग इंटरेक्ट ही कर रहे हैं। देखो तुम्हारे दोनों सीनियर, मेधा भी, अनन्या भी, कितने अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। है ना, उनको एक्सपीरियंस है ना, मैं अभी जस्ट मैं एक्सपीरियंस कितना सा फर्क है, एक साल का ही तो अंतर होता है। हाँ सर, मेरा तो ये फर्स्ट है, कुछ कॉलेज में मैंने कुछ किया है। तो तुम्हारे पास तो और एकदम स्पार्क, तुम्हारे अंदर स्पार्क है, दिस आई ऑलरेडी नो, ठीक है। तो तुम्हारे अंदर स्पार्क है, वो एक स्फूर्ति है, वो तुम्हारे अंदर एनर्जी है, उसको सिर्फ चैनलाइज करने की जरूरत है, ठीक है। तो ऐसा कोई उसमें बहुत परेशान होने, चिंतित होने जैसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा क्रिएटिविटी कहाँ है, क्या करना तुम्हें अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है? मैं ना, हाँ, समझ, जैसे कुछ भी चीज ऑर्गेनाइज करनी होगी ना, वो मैं कर दूंगी। मैं बैकस्टेज वाले काम करती हूँ, जैसे मैं हर चीज ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ, बट मेरे को फ्रंट में नहीं आ रहा, मैं पीछे पीछे सब कुछ कर दूंगी। तो अब यहाँ इस प्रोग्राम में तो फ्रंट में ही रहना, यहाँ पीछे से तो फिर दिखेगा भी नहीं कि तुम कहाँ हो। सर वो मैं समझ गई, बट होते हैं ना कुछ लोग आगे नहीं आते, बट पीछे से ऐसा मैनेज किया होता है कि वो बहुत अच्छा हो जाता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं अपने स्कूल में हाउस कैप्टन थी, अपने हाउस की। सर मैंने बोलता मैं हाउस कैप्टन थी, तो मैंने वहां पे अपने हाउस को एक दिन पहले कंपटीशन का मुझे पता चला था, तो मैं उस टाइम में बनने वाली थी, उस टाइम कुछ अभी रिजल्ट्स नहीं आए थे, तो मैंने एक दिन पहले वो कंपटीशन लिया, और वो गांधी जी के ऊपर बनाना था, मतलब उन्होंने जो जो किया है ना, उनके कुछ कुछ इंसिडेंट्स डालने में बहुत दिमाग लगाना था काफी, तो एक दिन पहले किया और हमारा उसमें फर्स्ट आ गया था। तो तुम्हारे अंदर वो स्पॉन्टेनिटी है ना, कि एकदम इमीडिएटली कुछ कहा जाए तो तुम कर सकती हो। यस सर। तो वो बहुत बड़ी रेयर क्वालिटी है, ये सबके पास नहीं होती। यस सर। डांस करती हो तुम? डांस नहीं सर, करती थी स्कूल में। अब बंद कर दिया? अच्छा, गाना गाती हो? कॉन्फिडेंस। अरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस इज नॉट सच ए बिग थिंग, वंस यू स्टार्ट डूइंग द थिंग्स इट विल ऑटोमेटिकली कम। यस सर। गाना गाती हो? नहीं सर। लिखती हो कुछ? लिखती नहीं सर, बस बोलती हूँ। बोली तो नहीं रही हो तुम इतनी देर से। सर यहाँ नहीं बोला जा रहा, बोल तो नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है ना, तो अभी धीरे धीरे होता है, जैसे मैं धीरे धीरे खुलती हूँ ना, ऐसे यहाँ नहीं हो रहा। चलो ठीक है, अभी हम एक राउंड लेके और आते हैं, तब तक तुम खुल जाना फिर, ठीक है। Okay, so now moving on to Medha. Medha, since you are almost completed everything, so any final statement that you would like to make in this program?
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सुभी को बोलना चाहती हूँ कि बहुत टाइम से मैं अभी उसको बोलने वाली थी कि कॉन्फिडेंस अभी ऐसा लगेगा कि बट यू स्टार्ट ट्राइंग थिंग्स। अगर तुम स्टार्ट नहीं करोगी, अपने आप से फाइट करो। बिकॉज मुझे अभी इस सुभी को देख के एग्जैक्ट मुझे अपनी वाली फील आ रही है, बिकॉज मैं भी अपने फर्स्ट ईयर में ऐसी ही थी। बट मैंने खुद से ही सोचा कि मैं अगर यहाँ पे अपने आप को चैलेंज नहीं करूंगी और अगर पूरे 3 साल तक यही सोचते रह जाऊंगी कि नहीं मैं नहीं, मतलब मैं आगे फ्रंट फुट पे नहीं आऊंगी, फ्रंटल काम नहीं करूंगी, बैक स्टेज का काम करूंगी। ठीक है, तुम बैक स्टेज बहुत अच्छा काम कर रही हो, बट जो काम तुम अच्छा कर रही हो सिर्फ उसी को मत करो। बिकॉज मैंने भी तुम्हारे तरह ही फर्स्ट ईयर में किया था। बिकॉज सेकेंड ईयर में मुझे पता लगा कि नहीं, सिर्फ पीछे से काम करने से कुछ भी नहीं होगा। फ्रंट में अगर आप नहीं आओगे तो लोग आपको समझेंगे नहीं, आपको पता नहीं लगेगा, किसी को भी पता नहीं लगेगा कि आपने कितने काम किए, कितने हार्डवर्क किए हैं। तो फर्स्ट ईयर में मुझे कोई भी नहीं जानता था कि कोई मेधावी है, जबकि मैं अपने स्कूल डेज में बहुत ही फेमस स्टूडेंट थी। मतलब एकेडमिक्स से लेके हर चीज में बहुत फेमस थी। बट कॉलेज में मुझे ये चीज फर्स्ट ईयर तक बहुत ही बुरा भी लगता था कि मुझे कोई भी नहीं जानता है। बट सेकंड थर्ड ईयर में मैंने अपने आप को चैलेंज किया और अभी मुझे मतलब थोड़े बहुत ही टीचर्स जानते हैं, सारे मतलब नहीं जानते, बट फिर भी स्टिल आई एम हैप्पी कि सब जानते हैं मुझे। तो अपने आप से चैलेंज करो और अच्छा करो और सब चीज में पार्टिसिपेट करो, हर एक चीज में, हर एक इवेंट में पार्टिसिपेट। वेदर तुम उसमें जीत जाओ या हार जाओ, कोई मैटर नहीं करता है, बट पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। ये मैंने सीखा है। देखो देख लो शुभी, इतने अच्छे सीनियर्स हैं तुम्हारे, और क्या चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। तो मैं किसी सीनियर को नहीं जानती ना, बोला तो अब देखो जान लिया ना, देखो फेस टू फेस का एक ही फायदा तुम्हें सामने आ गया ना कि अब जान लिया ना, तो इस प्रोग्राम के बाद यू कैन बी इन टच विद मेधा, है ना। यस। और सर टीचर्स के लिए मैं स्पेशल बोलना चाहती हूँ कि मैंने कुछ नाम अभी भूल गई थी मैं। सुमंत्रा सर, कामिल सर, मनमीत मैम, अतुल सर फर्स्ट ईयर में हमें न्यूज राइटिंग पढ़ाते थे वो। फिर सुकृति मैम, सुरभि मैम, जितने भी सारे टीचर्स हैं, योगेश सर, सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे हम बोल पाएंगे। मैं सबको बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मैंने जो भी मतलब डेवलप किया, सीखा उसके लिए। और सर आपको स्पेशली, बिकॉज मेरी बहुत कम इंटरेक्शन हुई है, बट जितनी भी हुई है बहुत ही पॉजिटिव इंटरेक्शन हुई है, तो उसके लिए वेरी 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 थैंक यू सर। Thank you, Medha. Now moving on to Ananya. Ananya, any one-liner statement that you want to make in the end of the program? सर वन लाइनर देना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आईटीओ में सीखा ही पैराग्राफ लिखना है हमने। तो जैसे भी सुमी ने कहा कि इन्होंने कहा कि अभी इनको कॉन्फिडेंस नहीं है या डिबेटिंग का नहीं है, तो एक सीनियर तुम्हारे बहुत काम आ सकती है, प्रिया मिश्रा। उसके साथ बैठ जाओ और तुम्हें पता भी लगेगा कि तुम एक ही महीने में तुम अपने डिबेट के फॉर के पॉइंट को अगेंस्ट में भी ला सकती हो, बिकॉज शी इज दैट गुड। ठीक है, और अगर तुम कोशिश नहीं करोगी तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी ही लिखा मैंने। जैसे मैंने सबको कहा था कि मैं लिख भी लेती हूँ, तो वो पोएट्रीज तो मुझे नहीं मिली, पर मैंने अभी कुछ लिखा तुम्हारे लिए कि अगर ठान लो तो सिकंदर हो अपनी किस्मत के तुम, वरना ख्यालों में तो दुनिया सभी जीत लेते हैं। राइट। तो अगर खुद से आगे आप बढ़ के काम नहीं करोगी तो कुछ नहीं होगा। तो ये जो थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज है, मुझे समझ आता है ये स्टेज पे होती है, मुझे भी होती थी। वो 10 मिनट की इनसिक्योरिटी रहती है, बट अगर तुम स्टेज पे जाने की प्रैक्टिस नहीं करोगी तो ये इनसिक्योरिटी ही रह जाएगी, और तुम्हें बाद में रियलाइज होगा कि ये तुम बहुत अच्छे से कर सकती थी और तुम लोगों से बहुत बेहतर कर सकती थी। फिर बाद में रिग्रेट होगा कि तुमने पहले नहीं किया, इसलिए तुम अब नहीं कर पाओगी। तो ये सब, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, 3 साल है अभी तुम्हारे पास, ये सब की आदत डालो। यही सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी मैं अपने आप से भी और सबसे भी। लो शुभी, अब तो तुम्हें इतने लोग मिल गए, अब अनन्या भी मिल गई, अनन्या ने फिर प्रिया का भी नाम सजेस्ट कर दिया। सो आई मीन देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स, लॉट ऑफ गुड सीनियर्स दैट यू हैव, सो I mean, a bright future is ahead for you, Shubhi. Any final thing that you would like to say now, Shubhi? यस सर, बस यही कि अब नेक्स्ट टाइम जो भी होगा उसमें मैं बोलूंगी। सर मैंने खुद इनिशिएटिव लिया है कि मेरे को अब चीजों में पार्टिसिपेट करना है। मैंने पहले लेट गो कर दिए थे चीजों को कि अब नहीं, रहने दो। अब मैंने खुद सोचा कि अब मेरे को पढ़ना है। मेरे कोई दोस्त नहीं करता, वो कुछ ज्यादा ही डरपोक है, वो कुछ नहीं करते, तो उनके साथ मैं भी वैसी हो गई। नहीं, अब ग्रुप बदल दो ना, अब तुम अनन्या से दोस्ती कर लो तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ सर, एक और चीज, अनन्या दी ने जो भी बोला ना प्रिया दी के बारे में, मैंने सोचा था उनसे बात करने का, मुझे भी वो वैसी रूड सी लगती थी, इसलिए मैंने बात ही नहीं की। रूड नहीं है वो, बस थोड़ी सी जैसे
इंट्रोवर्ट कह सकते हैं, इंट्रोवर्ट भी नहीं है, पता है वो नहीं, जो जो नहीं, जो अनन्या ने पहले कहा कि वो उसकी स्टाइल है, तो उसको देख के ऐसा लगेगा, लेकिन ऐसी है नहीं, यही कहा था ना तुमने अनन्या? ओके, तो चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन हुआ सभी के साथ, एंड थैंक यू ऑल, मेधा, अनन्या एंड शुभी, फॉर मेकिंग दिस प्रोग्राम सो इंटरेक्टिव, so lively, and at the end of this, the way the whole program proceeded, I would say the final thing that one should always try to make efforts. Once you keep making efforts, success is bound to come. जो हम कहते हैं ना कि कभी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जब तक मुश्किलें नहीं होंगी, जैसे मेधा ने भी कई बार इस बात को कहा कि खुद को चैलेंज करना, तो जब तक आप खुद को चैलेंज नहीं करेंगे, अपनी जो भी आपके जो ऐसा एस्पेक्ट है जिससे आपको बाहर आना है, आप बाहर नहीं आएंगे, अपने शेल में ही रह जाएंगे। तो उससे बाहर आने के लिए आपको अपने को चैलेंज करना पड़ेगा, अपने शेल से बाहर आना पड़ेगा, लगातार कोशिशें करनी पड़ेंगी, तभी आपको जीवन में सफलता मिल सकती है। इसके अलावा आपको आगे आने का, जीवन में आगे बढ़ने का कोई और रास्ता नहीं है। विद दिस पॉजिटिव note, I wish that everybody do well and we finish this episode of Face to Face. Thank you all.